গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আজি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি দেশজুৰি এতিয়া এইটোৱে হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ বিষয় আজি এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেট চমুকৈ ইডিয়ে জেৰা চলাব অৰবিন্দ কেজৰিৱালক দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সোধাপোছাৰ বাবে ইডিয়ে সমন জাৰি কৰিছিল কেজৰিৱালক সোধাপোছাৰ সময়তে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে ইয়াৰ পূৰ্বে 16 এপ্ৰিলত সিবিআইয়ে সোধাপোছা কৰিছিল কেজৰিৱালক বৰ্তমান খুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত কাৰাগাৰত আছে মনীষ সিসোদিয়া আৰু আপৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় সিং কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশিয়ে মন্তব্য কৰিছে যে 2 নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আপৰ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত বিজেপি চৰকাৰ লিপ্ত হৈছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে আতিশিয়ে যদি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেন্তে কোনে ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰ্চাত আছে 3 মন্ত্ৰীৰ নাম গোপাল ৰায় পৰিৱেশ মন্ত্ৰী আতিশী শিক্ষামন্ত্ৰী দিল্লীৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিশীৰ নামো চৰ্চাত আছে কেজৰিৱালৰ ঠাইত সৌৰভ ভৰদ্বাজো হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী 3 গৰাকীকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে গোপাল ৰায় পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী আতিশী শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আন গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজ এই 3 গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে কাৰণ ইতিমধ্যে আপৰ নেতাসকলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আজি ইডিয়ে জেৰা চলোৱাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক সমুখত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই এতিয়া এনেদৰে ইডিয়ে আম আদমি পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰা বিষয়তে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিত ইয়াৰ পূৰ্বে সাংসদ সঞ্জয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল যে একাধিক নেতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ইডিয়ে অভিযান চলাব সেই সম্ভাৱনাৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে আমি জনাইছো আজি পুৱাই আন এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে 9টাকৈ স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল খুৰা নীতি গ্ৰহণ আৰু খুৰা নীতি তথা আবকাৰী নীতি বাতিল কৰাৰ বিষয়ক বিয়াগম আৰ্থিক কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল 300 কোটিৰো অধিক বিত্তীয় কেলেংকাৰী তথা খেলিমেলিৰ এই অভিযোগত ইডিয়ে ইতিমধ্যে মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ মনীষ সিসোদিয়াৰ জামিন আবেদনো নাকচ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ বিপদ সন্মুখত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এয়া এটা বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি আখ্যা দিব বিচাৰিছে আৰু আপৰ যিসকল তেওঁলোক মন্ত্ৰী বা তেওঁলোকে বা জ্যেষ্ঠ যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকৰ মতে বা আতিশী যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ মতে যে আতিশী কোৱা অনুসৰি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে এয়া হৈছে বিজেপিক চেলেঞ্জ কৰাৰ এক প্ৰতিশোধ আৰু প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ বিজেপিয়ে এনেধৰণে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আপৰ নেতাসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক যিহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ইডিয়ে আজি জেৰা চলাব ইয়াৰ পূৰ্বে এপ্ৰিল মাহতো কেজৰিৱালক সিবিআই সোধাপোছা কৰিছিল কিন্তু সেই সময়ছোৱাত সোধাপোছা কৰাৰ অন্ততে যিহেতু যাবলৈ দিয়া হৈছিলে গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যদিহে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জেললৈ যায় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ চলিব কেনেকৈ দিল্লী চৰকাৰ কেনেকৈ চলিব কিয় ডাঙৰ প্ৰশ্ন शंकर आनंद अच्छा हमारे शंकर क्या होने वाला है और क्या कुछ बोल रहे जो नेता है आपके वो लोग क्या कुछ बोल रहे अभी एक ऐसा सिचुएशन है कि जेल से ही सरकार चलेंगे क्या इस तरह के कुछ मामले भी मतलब इस तरह की एक वहाँ पे गुंजाइश चल रही होगी शंकर देखिए जो सवाल है सवाल एक आम आदमी का सवाल है और इस तरह के सवाल जरूर आम आदमी इस तरह के पूछते हैं कि जिस तरह से कई मंत्रियों के खिलाफ लगातार दिल्ली के जो कई मंत्री हैं उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है कई ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिसका वास्ता आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पे इस तरह के सवाल आम आदमी का जरूर होता है कि कई लोग जेल जा चुके हैं कई लोग अभी लाइन में खड़े हैं जो कभी भी जेल जा सकते हैं तो
तो ये सवाल वाकई में जायज बनता है। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी से जुड़े हुए मामलों की अगर बात करें तो जांच एजेंसी का कहना है कि देखिए जिस तरह से इस मामले की पड़ताल की जा रही है, खासतौर पर दिल्ली सरकार से जुड़े हुए आबकारी जो नीति का जो पुराना मामला था, उस मामले में जब मामले को दर्ज करने के बाद जिस तरह से ईडी की प्रक्रिया इस वक्त में काम कर रही है, तो जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले थे। उसी के सबूतों के आधार पर इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और पिछले कुछ समय तकरीबन 1.5 साल के अंदर देखा जाए तो कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की से पूछताछ हो चुकी है। और जो दर्ज स्टेटमेंट है और जो अभी तक इस मामले में सबूतों को जिस तरह से इकट्ठा किया गया है, उसी के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का समन भेजा गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मैं आपको देना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं ये कि अरविंद सबसे बड़ी ब्रेकिंग है शंकर कि वो आज नहीं आ रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। और जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि आज वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रहे हैं और इस मामले में लिखित तौर पे उनके द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई है। लेकिन ईडी के द्वारा अभी तक इस मामले की कोई ऑफिशियल औपचारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। और जिस तरह से आप मुझे आपका अगला जो सवाल जो आप मुझे पता है जो मैं एक बार आपको यहाँ थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा आप रुकिए, मैं इस बात को मैं हमारे लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ दर्शकों को जे আজি अरविंद केजरीवाल ইডিৰ সন্মুখীন নহয়। ইডিয়ে যে জেৰা চলোৱাৰ কথা আজি 2 নৱেম্বৰ, যেহেতু ইডিয়ে আজি জেৰা চলোৱাৰ কথা আছিলে, গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই জেৰাৰ সন্মুখীন নহয় আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, কাৰণ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণত যাব। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ইডিয়ে যি সমন জাৰি কৰিছিল বা আজি ইডিয়ে জেৰা চলাব বুলি যেহেতু চৰ্চা চলি আছিল, তাৰ ওপৰত এই সূত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে আমাক জনোৱা অনুসৰি যে আজি অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণে ईडी तरफर पर जनवा हुआ ना, जदिव किंतु जरार सम्मुखीन नहीं आज केजरीवाल। शंकर फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। शंकर, दूसरी बात आप मेरी दूसरी सवाल के जवाब दे रहे हैं अभी, और साथ में और एक सवाल मैं आपको पूछने जा रही हूँ कि इकट्ठा आप बताइएगा कि अभी देखिए सख्ती तो बरत ही रही है, मनीष सिसोदिया को भी हम देखें तो जमानत नहीं मिल रही है। अगर केजरीवाल की पूछताछ के बाद जेल जाना पड़े तो होगा क्या? निश्चित तौर पर देखिए, कहा जा सकता है ये आपका सवाल बहुत सटीक सवाल है, क्योंकि ये सवाल का ही जवाब मैं देने के प्रयास कर रहा था और यही मैं बताना ही चाह रहा था। देखिए, सबसे पहला और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि आज अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। तब अब यहाँ सवाल सबसे पहले उठता है कि अगर वो आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आएंगे तो आगे जांच एजेंसी क्या कर सकती है, क्या क्या एक्शन कर सकती है। तो इस मामला को भी जानना समझना बेहद जरूरी है। तो इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जांच एजेंसी के द्वारा सबसे पहले एक और जो सम्मन है वो जारी किया जाएगा, पूछताछ का एक और सम्मन जारी किया जाएगा। तो हो सकता है कि आज देर शाम तक जांच एजेंसी के द्वारा एक पूछताछ का एक नया सम्मन जारी किया जाएगा और एक नई तारीख मुकर्रर की जाएगी और वो बताया जाएगा कि अब उनको कब पूछताछ के लिए आना है। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। और दूसरी अगर बात करें कि अभी देखिए अभी पूछताछ की जो प्रक्रिया होती है वो जांच एजेंसी की एक कॉमन सा एक ये प्रक्रिया है। तो उसमें पहले सबसे पहले उनको पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा और उसके बाद जो तमाम जो एक्शंस हैं वो हो सकता है। तो पूछताछ की प्रक्रिया कई बार होती है, 2 बार 3 बार 4 बार भी किया जा सकता है। तो अभी केजरीवाल को मुख्यमंत्री केजरीवाल को और एक नया तारीख निर्धारण किया जाएगा। तो और हम जानना चाहेंगे आपसे कि और एक मंत्री के घर पर अभी ईडी का अभियान चल रहा है, राजकुमार अनंत, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या जानकारी है आपके पास? इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले न्यूज 18 पे ही इस खबर को ब्रेक किया गया था। और जिस तरह से राजकुमार आनंद की बात करें तो ये दिल्ली सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ ये अभी कुछ समय पहले ही उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। और जिस तरह से मामले की अगर बात करें तो 7 करोड़ रुपए के संदिग्ध एक हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़ा यह मामला है। दरअसल जो एक केंद्रीय जांच एजेंसी DRI है, DRI के द्वारा पिछले कुछ समय पहले एक केस रजिस्टर किया गया था और उसी मामले को
बाद में ईडी ने टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को दर्ज किया है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे कर रही है। उसी के तहत तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और 1 दर्जन जो लोकेशन है उसमें कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जो है इस वक्त में जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है और सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि अभी मुश्किलें जो है आम आदमी पार्टी की वो कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। एक तरफ देखा जाए तो कई मंत्री जेल के अंदर में हैं, दूसरी तरफ देखा जाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब जांच एजेंसी के रडार पर आ चुके हैं। पूछताछ के लिए उनको समन किया जा रहा है और अगली जो एक कार्रवाई देखा जा रहा है तो उसमें एक नए मंत्री जो अभी हाल फिलहाल में ही वो मंत्रिमंडल में ज्वाइन हुए हैं, उनके खिलाफ भी आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो आज तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई लोगों की मुश्किलें खास तौर पर शंकर, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बार बार ये एलिगेशन बीजेपी के खिलाफ लाया कि वो बीजेपी ने सीबीआई ईडी को इस्तेमाल किया है। तो जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था उस टाइम बहुत जोर शोर से प्रोटेस्ट किया था आम आदमी पार्टी ने। तो इस बार क्या कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है दिल्ली में? ईडी मुख्यालय के बाहर में काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। काफी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, दिल्ली पुलिस के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जरूर बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ पर आज जिस तरह से हमारे सूत्र ने कंफर्म किया है कि आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे और बाद में जब वो आएंगे उसके बाद उस वक्त में देखा जाएगा कि और जांच एजेंसी के द्वारा किस तरह से आगे कार्रवाई करनी है। तो फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने नहीं आ जा रहे हैं, जैसा कि हमारे सूत्र ने इस खबर को कंफर्म किया है। जी शंकर, और अगर केजरीवाल को नेक्स्ट जब नया तारीख निर्धारण किया जाएगा, अगर केजरीवाल गिरफ्तार होगा तब मुख्यमंत्री कौन होगा? 3 कैबिनेट मंत्री चर्चा में है इस बार, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ कहना तो फिलहाल जल्दबाजी होगी क्योंकि ये मामला पूर्ण तौर पर राजनीतिक मसला है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के द्वारा निश्चित तौर पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी में इन तमाम मसलों पर जो आपका सवाल है एकदम बहुत सटीक सवाल है और ये दिल्ली की जनता आज इस सवाल का जवाब भी जानना चाहती है कि आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ मसला है। तो इस मामले को भी लेकर जो पार्टी के अंदर में तमाम जो एक रणनीति वो बनाई जा चुकी है। यहाँ तक कि अगर हम देखें तो शंकर, सौरभ भारद्वाज जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी कहा है कि अगर मतलब ये अगर में ही अटके हुए हैं शंकर, कि अगर ये गिरफ्तार हुआ, अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाना पड़ा तो होगा क्या? तो जेल से सरकार चलेगी, ये बात सौरभ भारद्वाज ने बताया है ना शंकर? जी, आपने सही कहा है कि कल इस मामले में सौरभ भारद्वाज का एक स्टेटमेंट आया था। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और इस मामले पे उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि सवाल तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि और जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जेल से सरकार चलेगी, तो ये अपने आप में एक बड़ा ही एक हास्यास्पद मामला बनता है कि बड़ा ही एक ऐसा मामला कि उस पर आम लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि एक ऐसी पार्टी जिस पर भरोसा करके दिल्ली के लोगों ने पार्टी को जिताया और एक बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनको पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाया, तो कहीं न कहीं उस पार्टी का जो अस्तित्व है आज वो अस्तित्व जो है वो आज खतरे के निशान पर है। तो लोगों के अंदर में सवाल उठना लाजमी है। तो शंकर, इसका प्रभाव लोकसभा इलेक्शन में भी आएगा दल पर, आम आदमी पार्टी पर? देखिए, निश्चित तौर पे इसका जो एक असर जो है वो आने वाले वक्त में जो लोकसभा चुनाव है या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी वहां पर कैंडिडेट जो है वहां पे खड़ी कर रही है, तो कहीं न कहीं उसका असर वहां पे भी होगा और उनके उम्मीदवारों पे भी होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी इन तमाम मसलों पर आगे जो रणनीति है वो बना रही है और मुख्यमंत्री बिल्कुल शंकर जी, हम आपसे फिर से जुड़ेंगे
लेकिन इस वक्त हम आपसे विदा लेंगे। आपको शुक्रिया, क्योंकि अभी हमारा एक ब्रेक लेने की वक्त आ चुकी है, तो हम आपसे विदा लेंगे। आपको शुक्रिया। लेकिन आपने जो जानकारी हमें दी এই মুহূৰ্তত যিখিনি খবৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে আমাক দিলে, আৰু সেই খবৰ অনুপাতে এক বিশ্বস্ত সূত্ৰ অনুসৰি যে আজি ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, আৰু পৰৱৰ্তী সমন কেতিয়া জাৰি কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত অৱশ্যে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা ইডিৰ ফালৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জনোৱা হোৱা নাই। যি নহওক সমগ্ৰ বিষয়টো এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ ৰাজনীতি, দেশৰ ৰাজনীতি গৰম কৰি তুলিছে। লাইভ আৱাৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। বিষয়টোক লৈ আগতীয়াকৈ তেওঁলোক সষ্টম হৈ যায়, আৰু যিহেতু আজিকালি চিঞৰ বাখৰ কৰিব পৰা নাযায় বা আজিকালিৰ মাধ্যম বেলেগ, গতিকে প্ৰত্যেকৰে হাতত বেলেগ নাথাকিলেও মোবাইলটো থাকে। আপুনি ক'ৰবালৈ যাওক নাযাওক তাৰ বিষয়ে বহলাই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। প্ৰত্যেকে আমি অভিজ্ঞপুষ্ট যে মোবাইলটো অবিহনে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ। বেলেগ থাকক নাথাকক মোবাইলটো আমাক লাগিব। গতিকে সেইটোৰে এটা ব্যৱস্থাৱলী কৰা হৈছে যে মোবাইলত যাতে আপোনালোকক লগে লগে একোটা ইনফৰমেশ্যন দি দিব পৰা যায়। এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দূৰসংযোগ বিভাগটোৱে আৰু লগতে NDMA চেল ব্ৰডকাষ্টৰ পৰীক্ষা কৰিছে। এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই ৰূপায়ণ কৰি থকা পেন ইণ্ডিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি এলাৰ্ট ছিষ্টেম পৰীক্ষা কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে আপুনি এই বিষয়টোক লৈ ভয় খাব লগা একো নাই। আপডেটছ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক জনাই যাম। বৰকৈ ভয় নাখাব, অ'কে কৰি দিলেই হ'ল। আপোনাৰ তাত যদি ৰাখিছে ইংৰাজীতে হওক বা অসমীয়াতে হওক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই কৃপাঞ্জলি। আপুনি চাই থাকিলে এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ। নমস্কাৰ। বিভীষিকাময় 23 দিন। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই 23 দিনত ভৰি দিলে, কিন্তু এতিয়াও এই যুদ্ধৰ জুইকুৰা নুমুৱাৰ নামেই লোৱা নাই। বৰং এই যুদ্ধৰ জুইকুৰা আৰু তড়িৎ গতিত সম্প্ৰসাৰিত হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতেই যেন এতিয়া এই যুদ্ধৰ জুই জ্বলি উঠিছে। হামাছক উৎখাত কৰিবৰ বাবে ইজৰাইলে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অভিযান চলাই গৈছে। আকাশমাৰ্গেৰে আৰু স্থলপথেৰে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে। যুদ্ধৰ 23 দিনত গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। ইজৰাইলৰ লক্ষ্য কেৱল এতিয়া উত্তৰ গাজা, কাৰণ এই উত্তৰ গাজাতে আছে হামাছৰ এটা বৃহৎ প্ৰভাৱ, হামাছৰ বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি। শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এটা তথ্য লাভ কৰিছে যে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰ অংশত থকা দুখনকৈ বৃহৎ হাস্পতালত ঘাটি পাতিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। হয়, এই তথ্য ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ মুখপাত্ৰগৰাকী, আৰু তাৰ বাবে এই দুইখন হস্পিটেল হ'ল আল কুচ হস্পিটেল আৰু আল চাইফা হস্পিটেল। আল চাইফা হস্পিটেল হ'ল গাজা ষ্ট্ৰীপৰ সৰ্ববৃহৎ এখন চিকিৎসালয়, আৰু এই চিকিৎসালয়খনক এতিয়া কাৰ্যালয় হিচাপে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ব্যৱহাৰ কৰাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है और किस तरह से इजराइल लेबनान के इलाकों को निशाना बना रहा है उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दायरा इलाके में हमारी मौजूदगी है। मैं आपको देखिए तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे तो इजराइल का बॉर्डर है और इजराइल के बॉर्डर से ठीक पास में यहाँ पर देखिए रॉकेट से हमला किया गया था और ये सड़क किस तरह से डैमेज हो गई। और बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আৰু স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত ইতিমধ্যে আমি কৈছো আৰু আজি দিনটো এটা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয়
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী য'ত নেকি আজি 2 নৱেম্বৰ আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ কথা আছিল, জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু সেয়া ইতিমধ্যে এক বিশ্বস্ত সূত্ৰ অনুসৰি যে তেওঁ ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয়, কাৰণ আজি তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব। গতিকে এটা নতুন এটা তাৰিখৰ বাবে হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে ইডিৰ তৰফৰ পৰা এই কথা জনোৱা হোৱা নাই বা আপৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰাও জনোৱা হোৱা নাই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা আমি সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সৈতে শংকৰ আনন্দ, আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। शंकर, अभी आपने बोला कि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है नया डेट का, तो क्या संभावना हो सकता है, कब नया डेट निर्धारण किया जा सकता है? देखिए, इस मामले में जो नया तारीख की अगर बात करें तो आज अरविंद केजरीवाल के घर पर आज कई दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद इस मामले पे विस्तार से चर्चा होगी कि क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, आगे क्या किया जा सकता है। तो इन तमाम मामलों पर आगे की रणनीति बनेगी, चर्चा किया जाएगा। लेकिन जो जांच एजेंसी के द्वारा अगर बात करें तो जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले पर एक नई तारीख जो है वो मुकर्रर देर शाम तक किया जा सकता है, क्योंकि जांच एजेंसी इस मामले पर बाद में ये तय करेगी कि आगे करना क्या है। और जिस तरह से बकायदा मामले की अगर बात करें तो इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा तमाम पहलुओं को तलाशा जाएगा और उसके बाद एक नई तारीख मुकर्रर की जाएगी, तारीख तय किया जाएगा कि केजरीवाल को कब बुलाना है। लेकिन इस मामले पे जो फैसला लिया जाएगा वो देर शाम तक फैसला लिया जा सकता है। और इतना जिस तरह से बकायदा केजरीवाल की बात करें तो जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वाराणसी जाने का उनका प्लान है और उसके साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो चुनावी राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं और वहां पर जो तमाम अपने रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां जाने की जो योजना है वो बनाए हैं। तो आज ज्यादा संभावना है कि वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि वहां से फिर वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। जी देखिए शंकर, अगर हम बात करें आपकी तो एक होता है ना कि अब दिल्ली में फ्री में आपको बिजली मिल रही होगी, बिजली मिल रही है, होगी नहीं मिल रही है, पानी की मुफ्त है, तो इन सब में एक जब ये आपके जो नेताएं हैं और इस मामले में इस घोटाले में एक के बाद एक को चमन मिल रही है, एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं, नोटिस मिल रही है, उनके घर पर छापामारी चल रही है, तो इस वक्त दिल्ली की जो जनता है उनके दिल में सवालात ये हो रही है कि हमने किसको चुना, पहली बात है ना शंकर। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा ही हुआ जो हम लोग सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं आपके, अगर हम आपके ही हिसाब से आपके ही हम अगर जो शब्द है उसको हम लाए तो ये अटक रहे हैं हर कोई, दिल्ली की जनता अभी लटक रही है, अटक रही है कि नहीं? ऐसा नहीं हो रहा है क्या माहौल वहां पे? निश्चित तौर पे आपका सवाल एकदम जायज है कि लोगों के अंदर में जरूर ये भावना आ रही है कि क्या हो रहा है और किस तरह से माहौल बन रहा है। और वो सरकार जो आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार जिसको 2 बार पूर्ण बहुमत से जिताया गया दिल्ली में और एक नई नवेली पार्टी को 2 बार का यहाँ पे सत्ता में बैठाया गया। लेकिन यहाँ पर जो अगर जांच एजेंसी की बात करें तो जांच एजेंसी उन तमाम मामलों पर काम करती है जहां कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सामने आता है तो उन तमाम मामलों को पर आगे एक्शन करती है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और देना चाहूंगा, ईडी के फंक्शंस के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा जो जिससे कि मामले को समझने में बहुत आसानी होगी। ईडी कभी भी कोई नया केस रजिस्टर नहीं करती है कि अचानक कोई मामला सामने आया और केस रजिस्टर कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ईडी तभी उसकी एंट्री होती है जब कहीं पे कोई मामला रजिस्टर्ड होता है और उस जो करप्शन से जुड़ा हुआ अगर कहीं मामला रजिस्टर, चाहे वो सीबीआई में हो, डीआरआई में हो या किसी भी थाने में अगर कहीं मामला रजिस्टर्ड होता है तो अगर उस मामले में अगर कोई बड़ा मामला दिखता है तब जांच एजेंसी उस केस को टेक ओवर करती है। यानी कि जो एफआईआर स्थानीय पुलिस थाने में रजिस्टर्ड है या सीबीआई में रजिस्टर्ड है या इनकम टैक्स में है, अगर उस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जैसा कुछ चीजें निकल के सामने आ रही हैं तो उस केस को टेक ओवर किया जाता है। यानी उस एफआईआर को एज इट इज यहाँ पे लिया जाता है और उसमें सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस मामले को एक सेक्शन को ऐड किया जाता है और उस केस को टेक ओवर कर लिया जाता है। तो यहाँ समझा जा सकता है कि ईडी पे जो सवाल उठाते हैं तो वो जानना, ईडी अपने द्वारा कोई केस रजिस्टर नहीं करती है, पे कोई केस रजिस्टर्ड होता है उस केस को टेक ओवर किया जाता है। जी सवाल अभी ईडी पे नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली आपने जो जानकारी दी ये जानकारी सच में ये आम जनता के लिए भी जरूरी है शंकर। इस वक्त हम अगर इस तरह की जानकारी हमें भी देना चाहिए क्योंकि आपने कहा ही है ईडी के मामले में, तो ईडी के जो ईडी कर रहे हैं उसके ऊपर कोई सवालात नहीं है, लेकिन
सवाल जनता कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी के नेता है, जो वरिष्ठ नेता है वो लोग कर रहे हैं? वो लोग संवाद माध्यम को या फिर मीडिया को वो लोग बोल रहे हैं, वो लोग अपने जवाब में दे रहे हैं कि ये चैलेंज भाजपा को दिया गया था केजरीवाल सरकार की तरफ से, तो इस वजह से शायद भाजपा ने ये सब किया होगा। मतलब लोगों को ये अंधेरे में रखने के लिए इस तरह के ये लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं या फिर क्या कुछ? देखिए, इस मामले पे अभी राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है अब दौर शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं, और जो तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शन जो है बाकायदा तो पॉलिटिकल रिएक्शन जो है वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला है, इस मामले पर आप देखिए बीजेपी के द्वारा तमाम जो सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और इस मामले पर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के कुछ नेता जो है उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए भी कहा है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहलाती है, लेकिन जिस तरह ये मामला उनके सामने आ रहा है, कई नेता जो है उसके गिरफ्तार हो रहे हैं, कई लोगों से पोस्टिंग हो रही है, तो ये मामला अपने आप में शंकर सौरभ भारद्वाज की एक प्रतिक्रिया आई है, एक रिएक्शन आई है, हम उसे ले रहे हैं। राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं, दिल्ली के मिनिस्टर, उनके घर ईडी की रेड चल रही है और 9 अन्य जगहों पर भी चल रही है। देखिए, राजकुमार आनंद जी का दोष ये है कि वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पहली बार चुने गए विधायक हैं और आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अगर किसी के घर पे आपको सर्च करनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज़ भी ये मानते थे कि किसी पुलिस या किसी एजेंसी को अगर आपने हक दे दिया कि वो किसी के भी घर में घुस के जांच कर ले, तो फिर तो दहशत का माहौल होगा हर जगह, इसलिए कोर्ट्स सर्च वारंट देते थे। मगर आज ईडी को किसी कोर्ट के वारंट की ज़रूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको आज किसके घर पे छापा मारना, और ख़ास बात ये है छापा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के यहाँ ही मारा जाता है। अब तक ज़्यादातर राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके मुख्यमंत्री हैं, कितने मंत्री और मुख्यमंत्रियों के यहाँ आज तक छापा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बताए। ईडी स्वायत्त है, कानून अपना काम कर रहा है, ये गाना गाने से कानून की बात नहीं होती है। आप बताइए, ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, कैग की रिपोर्ट आपके खिलाफ आती है, आपके ऊपर इंटरनेशनल अखबारों के अंदर हज़ारों करोड़ के लेन देन के जो है आरोप लगते हैं, ईडी क्यों नहीं जाती है जांच करने? सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को कुचलने की कवायद है और जो है एजेंसीज का दुरुपयोग है, और इतना दुरुपयोग मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों ने भी कभी किया होगा जितना दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10 दुकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स की धरपकड़ के लिए लगे हुए हैं, और मकसद सिर्फ ये है 2024 से पहले जितने भी बड़े लीडर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ दे सकते हैं, उनको किसी तरीके से गिरफ्तार कर लो, जेल में बंद कर दो। जब जेल में ही बंद हो जाएगी सारी अपोजिशन, तो चुनाव कौन लड़ेगा? केवल जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के खुद अकेले चुनाव लड़के सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी जो इससे पहले तमाम जो अपोजिशन के लीडर्स इंडिया जो घटक है उसके सबको वो जेल में डाले। देखिए, ये ट्रेंड बहुत साफ है, साफ देखने में आ रहा है, और ईडी के सीबीआई के जो अफसर हैं, ये भी तमाम लोग जो हैं सरकारी अफसर हैं। ये लोग अन्य नेताओं से अक्सर जो है चर्चाएं करते हैं, और ये बात साफ दिखती है कि जिस दबाव में ये एजेंसियां काम कर रही हैं, ऐसा दबाव पहले किसी सरकार ने नहीं लगाया। আৰু সেয়া সৌৰভ ভৰদ্বাজ, আম আদমি পাৰ্টিৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সেয়া সৰব হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপিয়ে ইডি, ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক বা CBI হওক, সকলোকে হাতৰ পুতলাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্থান দেখি শংকিত হৈছে, আৰু যাৰ বাবে শীৰ্ষ নেতাসকলক এনেদৰে
গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ সপোন দেখাৰ কথা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ আনিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে কিন্তু ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে আজি 2 নৱেম্বৰত ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ কথা আছিল যদিও আজি ইডিৰ সমন অনুসৰি ইডিৰ সন্মুখত হাজিৰ নহয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিৰ্বাচনী ভ্ৰমণ তেওঁৰ উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিব বাৰাণসী ভ্ৰমণ কৰিব মধ্যপ্ৰদেশলৈ যাব ছত্তীশগড়লৈ যাব কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়তো নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰু বাপৰি যদি চোৱা হয় ইতিমধ্যে আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্থানত বিজেপি শংকিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সৌৰভ ভৰদ্বাজে আম আদমি পাৰ্টিয়ে শেহতীয়াকৈ কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ মৰ্যাদাও লাভ কৰিছে And drama. Today is the time for Daitwa Nibana, which means you go and answer the agencies and don't play victimhood card, give the report card of your corruption. Stop playing this vendetta card all the time. Are the courts against you? Are the courts doing vendetta against you? The Supreme Court is doing vendetta when it says Sharab Ghotala has taken place. 338 crore rupees money trail is established. Is the Supreme Court, High Court, Lower Court against you when it denies bail to Sanjay Singh, Manish Sisodia, Vijay Nair for months on end? Are they all against you? And even Congress party has issued statements that you are personally responsible for this corruption, that you have taken bribes in this matter. Ajay Makan to Anil Chaudhary have made these statements. Are they also vindictive against you? Today the question is that those who started their journey against corruption and the India against corruption with Anna Hazare as their mentor have come to justification for corruption under the leadership of Lalu Prasad Yadav. First they used to say that we will take the resignation and then there will be investigation. Today they say whatever is the investigation, whatever is the court order, we will not give our resignation. Mr. Kejriwal, if you have any sense of propriety left, you should be giving a resignation for defending the Kattar Beima, for trying to subvert the entire process of investigation. And please tell us, isn't it true that 2.5% commission was increased to 12% with your active connivance, and there is proof to this effect? That with your active connivance, the wholesale was given to the private sector? That it was you who spoke to Samir Mahindra of Hindu Spirits and told him that Vijay Nair is your boy? Now the answer should be given as to how much corruption was done by the Aam Aadmi Party, how much money was received by the Aam Aadmi Party and its leadership, and that if there was no corruption, then why did you switch from the new policy to the old policy? Isn't it true that the Aam Aadmi Party has indulged in corruption, and now when the time is coming to give the answers for this, you are once again playing a victimhood card and doing justification of corruption? Maria, ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া কাৰণ এতিয়া যি ধৰণে আমি চালোঁ জয়ন্ত যে আপৰ তৰফৰ পৰা জ্যেষ্ঠ নেতা সৌৰভ ভৰদ্বাজে তেওঁৰ নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে তেওঁলোকে যিখিনি কথা ক'লে তেওঁলোকৰ পক্ষতে কথাখিনি ক'ব বাৰু ঠিক তেনেদৰে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা স্বাভাৱিক কথা তেওঁলোকে কৈছে যে ইস্তিফা দিব লাগে ইমান দিনে আচলতে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিবই লাগিছিলে ৰিজাইন দিবই লাগিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিবই লাগিছিলে গতিকে এনেধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ থাকিব আমি জনাইছোঁ তাৰ মাজতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি পুনৰ কৈছোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণলৈ যাব মধ্যপ্ৰদেশলৈ যাব গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি ইডিৰ জেৰাৰ সন্মুখীন নহয়